Hello students, today we are going to study geography for class 9 chapter number 1 India size and location. India's size and location. Generally we all are claiming that we know about everything about India. But actually there are a number of things that we are not knowing as far as size and location is concerned. We are claiming that India is situated in Asia and India is 7th largest country in the world. These all are okay. And what about location? We generally claims that it is in Asia, that's all. Number one, this is the reason why this chapter has been introduced as a part of your syllabus to know about this great motherland in which we are living. Its location. It is required to be known to us. Location means where India is exactly situated in the world map, on the globe, where. So we will discuss about that, and to know about location of India, we are going to discuss few more things regarding the determining the location of India or any country or any place. And what are those things? We will use 2 points of reference known as lines of latitudes and lines of longitudes that you people have already read in earlier classes. So now coming back to the point. So this chapter will give you a complete information about this motherland, about its size, about its location. So first of all, you should know that India is situated in Asia, but as well as it is also the part of the Indian subcontinent. Do you know the meaning of subcontinent? I believe that you all are familiar with the word continent. A huge landmass comprising a number of countries, oceans, seas. But over here the word is there, Indian subcontinent. Indian subcontinent itself a vast piece of land. And you can see easily that this Indian subcontinent comprising 5 countries, namely Nepal, Pakistan, India, Bhutan and Bangladesh. One more thing, these all are the neighbors of India. We will discuss about the neighbors of India also. Now, one thing you have to know regarding India, we are discussing about the location of India. So we have seen about the Indian subcontinent. One more interesting thing that we should know about this Indian subcontinent. India, out of these 5 countries, India is occupying the major proportion of Indian subcontinent. And this is the reason why it is also called Indian subcontinent. The subcontinent got name itself on India. Only because India occupies the bulk of the landmass and shares its boundaries with all the 4 countries. Remember, India shares its boundary with all these 4 countries, namely Nepal, Pakistan, Bhutan and Bangladesh. I believe that you all people are knowing the direction in which Nepal is situated, Pakistan is situated, Bhutan and Bangladesh is situated. You know that Nepal is in northern side of India and this Pakistan is northwestern side of India. Bhutan is again situated to the north side and Bangladesh is also situated to the eastern side of India. So we will discuss this again. One more thing, interesting fact. These countries, namely Nepal, Pakistan, Bhutan and Bangladesh, do not share their boundaries at all. But India is sharing boundary with all these countries. This is the unique thing about Indian subcontinent and India. But one more thing,
one major thing that is very much common, that these all 5 countries, see, I have written, these all 5 countries are sheltered by world's highest mountain, the Himalayas. Means Himalaya mountain is just stretching toward these 5 countries. You may be questioning regarding the Bangladesh. Yes, indeed. And regarding the Pakistan, some parts are there in Pakistan. Pakistan is very much near to the Himalayas, and Bangladesh also. Bangladesh is not directly touching this Himalaya range, but the you can say that the out part of the Himalaya mountain is just crossing towards the Bangladesh. So this is the major thing. So this is all about the introduction of India as a part of the country situated in Asia and in the Indian subcontinent. So in next, what we have to learn? We are going to learn about how to determine the location. Size, regarding the size, we all are familiar. We will discuss about the things also. But before that, I would like to introduce the concept of location, determining the concept of location regarding any country. You all are familiar regarding the GPS, Global Positioning System. And Global Positioning System is working on that particular coordinates. The coordinates means point of reference, that is latitudes and longitudes. So we will discuss about latitudes and longitudes first, then we will discuss about the India size and real location. Now, as we have discussed, that we have to discuss about the location of a place, about which I have just stated you regarding the point of references that help us to locate any place on the globe. I have taken the name of GPS, that is Global Positioning System. How that GPS works. So I have written the topic to locate any place on the globe. तो ग्लोब के ऊपर कैसे हम किसी जगह को प्लेस कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, कैसे हम ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले एक चीज, ये ग्लोब है क्या? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्लोब, इट इज a small model of Earth. A small model of Earth. तो इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता है कि हम धरती को पूरे रूप से एक बार में नहीं देख सकते हैं, तो ग्लोब के रूप में एक मॉडल है जिसको हम भली भांति से समझने के लिए, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपने नोटिस किया है कि उस ग्लोब के ऊपर बहुत सारी लाइनें होती हैं, इस प्रकार से लंबी लाइनें और सोई हुई लाइनें, जो कहते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या आपने कभी देखा है कि इन दोनों लाइनों के क्या क्या उपयोगिता है? ये लाइंस क्यों इसमें ड्रॉ की जाती है और इस लाइंस को क्या कहते हैं, और इस लाइन के लिए हमें ये लाइन क्यों है, इसके ऊपर इसकी उपयोगिता क्या है, ये चीजें हमें पढ़नी है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि ये दो प्रकार के लाइंस कौन कौन होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। उसके पहले एक चीज, एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि यदि आप अपने विद्यालय में किसी अपने दोस्त को, जो आपका दोस्त बाहर रहता है, आपके विद्यालय को विजिट करना चाहता है, आप उसको लोकेशन बताते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपका विद्यालय प्लेस XYZ पर स्थित है, आपका स्कूल, और एक बंदा जो बाहर से आ रहा है, ये स्टेशन पे उतरा, इसने आपको कॉल किया, आपसे पूछा कि भाई मैं आपके स्कूल आना चाहता हूं। तो अब आप अपने मित्र को स्कूल आने की विषय में उसके एड्रेस कैसे बताओ? सपोज करो आप अपने मित्र को ये बताते हो कि देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करना कि आप वहां से स्टेशन से उतरना और एक पर्टिकुलर माइलस्टोन बताते हो। से अगर जैसे मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस शहर में रहता हूं, जिस शहर का नाम मुजफ्फरपुर है, तो इस शहर की बात करता हूं, तो मान लीजिए कि एक हमारे यहाँ स्कूल है GD मदर, GDMIS। तो GD मदर स्कूल तक पहुंचना है इस बंदे को, तो आप कैसे एड्रेस बताएंगे? या आप ये सपोज कीजिए कि ये बाबा गरीबनाथ का मंदिर है,
गरीबनाथ टेम्पल। इस टेम्पल को आप कैसे बताएंगे? तो आप अपने मित्र को बताएंगे कि भाई स्टेशन से सबसे पहले आप आना कहाँ पे? तो टावर पे। हमारे यहाँ एक टावर चौक है, तो वहां आप बताएंगे कि आप टावर चौक पे आना, और टावर चौक से आकर के आप कहाँ पहुंचोगे? तो वहां से आप स्ट्रेट वे में होकर के जब आप निकलोगे छाता बाजार पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है अब आपको? तो छाता बाजार। छाता बाजार से आप सीधा टेम्पल के नजदीक पहुंच जाओगे। तो बच्चों क्या आपने देखा कि यू आर हैविंग 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। एक हमने देखा कि आप पहुंचते हैं सबसे पहले टावर चौक, और वहां से आप आते हैं छाता बाजार, और वहां आपको ये गरीब स्थान टेम्पल की आपकी प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से यदि इस धरती पे किसी जगह को हमें ढूंढना है तो उसके लिए 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। 2 महत्वपूर्ण सूत्र होने चाहिए। एक को कहते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, एक को कहते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर ये नहीं हो तो क्या करेंगे? अगर ये नहीं हो तो आप ग्लोब को लेंगे। अगर मैं कहूं कि ग्लोब के अंदर इंडिया ढूंढो, तो आप ग्लोब को नचाओगे, ढूंढोगे इंडिया 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 इंडिया, कहां पे इंडिया? इट टेक्स टाइम। अगर इंडिया के अंदर मैंने किसी जगह की बात बताई, बिहार को ढूंढो, तो आप उस ग्लोब पे बिहार नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर आपको बिहार का कोऑर्डिनेट पता होगा, यानी कि उसके लोकेशंस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के विषय पता होगा, तो आप समझ जाओगे कि कहां पे वो स्थित होगा, और आपको बार बार ग्लोब घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या ऐसे समझ लो कि मान लो कि आपका एक मित्र है, आप एक शहर में आते हो, उस शहर में उस मित्र का पता आपको नहीं है, उसके एड्रेस कंप्लीट पते नहीं है आपको, और आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप कैसे ढूंढोगे? तो आप क्या प्रचार करोगे? माइक पे उसका नाम लेके ढूंढोगे, भाई मुझे बताइए फलाने आदमी का पता। लेकिन यदि आपको उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता हो तो आसानी से आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, वो धरती पे मौजूद किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशनिंग को बताती है, और इसी पे जीपीएस सिस्टम वर्क करती है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले एक है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये दोनों के दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी, काल्पनिक। धरती पर इसका कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तो इसकी उपयोगिता क्या है? तो इसकी उपयोगिता है किसी भी स्थान को लोकेट करने में हमें ये मदद करती है। एग्जैक्ट पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं धरती के ऊपर। तो सबसे पहले आइए बच्चों पढ़ते हैं कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या होती है, और हमको कैसे पहचानेंगे कि ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है क्या। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लेटी हुई, यानी जो मैंने कहा कि ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से आपने जो लंबी रेखाएं और तिरछी रेखाएं देखी हैं, वो वही ये 2 सेट ऑफ लाइंस है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसी का ग्रिड सिस्टम बनता है। तो इसमें से वो रेखा जो लेटी हुई है, जैसे यहां पे मैंने दिखाया है, ये लेटी हुई रेखा, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती है। तो ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है क्या? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड वास्तव में डिफाइन करना होता है, तो इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। यानी अब यहां इक्वेटर की बात पहले कर लेते हैं। इक्वेटर है क्या? तो 0 डिग्री लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। देखिए, धरती को हमने एक हेमिस्फीयर माना है, एक स्फीयर माना है, सॉरी, हमने धरती को एक स्फीयर माना है, गोला। तो गोले को अगर आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में भी आपने पढ़ा है, तो गोला एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो गोले के मध्य भाग को अगर हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन मध्य भाग से, तो वो कहलाती है इक्वेटर। ये भी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है। ये सबसे लंबी लाइन है जो लैटिट्यूड के रूप में हम ग्लोब के ऊपर ड्रॉ करते हैं। इसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्किल, और ये 0 डिग्री लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहलाती है। तो अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये हम कहते हैं कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस जो इक्वेटर के साउथ या नॉर्थ को बताती है। दूसरे अर्थों में आप हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर लाइंस जो ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की जाती है, दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट,
जो रन्स करती है ईस्ट वेस्ट वो कहलाती है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अब ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को हमने ड्रॉ कर रखे हैं। एक्चुअली लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हम धरती के यानी ग्लोब के ऊपर हर 1 डिग्री की दूरी पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेटर को देखें तो इक्वेटर जब 0 डिग्री के ऊपर आती है और उसके बाद हमने कहा कि हर 1 डिग्री के ऊपर हम एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो आपने पढ़ा है बच्चों की सर्कल के जो टोटल एंगल होते हैं कंप्लीट सेंटर पे जो बनेंगे वो 360 डिग्री, यहां भी वही है। तो एक एक डिग्री पर अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो करते 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 इसके अंतिम पॉइंट पे पहुंचते हैं 90 डिग्री, और इधर भी इधर करते हुए पहुंचेंगे तो यहां भी 90 डिग्री। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 0 डिग्री लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। और यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ लाइंस की मैंने बात की उसमें से एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्किल, और इधर नॉर्थ पोल, यानी इक्वेटर के नॉर्दर्न डायरेक्शन में जितने भी लाइन ऑफ ड्रॉ किए वो सभी हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखिए ये पूरा स्फीयर था, इस स्फीयर को हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड के द्वारा क्या हुआ 2 भागों में बढ़ गया। वास्तव में इक्वेटर डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 कंप्लीट हाफ्स, और ये हाफ्स को बांटा तो ये ऊपर वाला भाग ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए मैप के ऊपर ग्लोब के ऊपर अगर डायरेक्शन को लोकेट करना हो तो उसके लिए ये आपको इस सूचना को याद रखना होगा। ये जो आपका अरे डायग्राम है उसके ऊपर इधर ऊपर की डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये ऊपर का भाग है, तो ये कहलाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के सदर्न पार्ट में जो भाग है लोअर भाग में दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर, और इसके अपर पार्ट पे ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी इक्वेटर के नॉर्दर्न जो इलाके हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहलाते हैं और इक्वेटर का सदर्न में जो भाग है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। बच्चों ध्यान देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। अब लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार के अधिकांश स्थल यानी जो लैंड है वो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। हेमिस्फीयर मतलब आधा सर्कल। उसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर को हम कहते हैं वाटर हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? वाटर हेमिस्फीयर। क्यों कहते हैं? तो संसार के अधिकांश ओशन सीज ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो चलिए अब तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने की कुछ। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो सबसे पहले है वो है इक्वेटर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ इन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, ये डायरेक्शन को बताता है कि वो इक्वेटर के नॉर्थ में है या साउथ में है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में है तो ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर इक्वेटर से नॉर्दर्न डायरेक्शन में 66.5 डिग्री पे जो हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है आर्टिक सर्किल, और जो 90 डिग्री पे है वो कहलाती है हमारी नॉर्थ पोल। बच्चों देखिए आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ किया है वो आपको लाइन दिख रही है। वास्तव में ग्लोब पर ये जो पोल है वो डॉट के रूप में आ जाती है, बिल्कुल छोटे। ये समझने के लिए मैंने नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा है आपको। और यहाँ देखिए ये 90 डिग्री इसी प्रकार से यहाँ साउथ पोल है, और इक्वेटर के साउदर्न डायरेक्शन में 23.5 डिग्री साउथ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ में ये अंटार्कटिक सर्किल है। तो ये हमारे कुछ सात इंपॉर्टेंट मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है जिसकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम इस पे देखते हैं कुछ और बातें। अब ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो है इसे हम लाइंस ऑफ पैरेलल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरेलल जो है ये लाइंस ऑफ पैरेलल मतलब ये लाइंस पैरेलल इन नेचर है। बच्चों क्लास 9 में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ाई होगा लाइंस के विषय में, तो ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब ये दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे रेलवे की पटरियां ये कभी नहीं मिलेगी, इनके बीच का डिस्टेंस बराबर रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, तो ये लाइंस ऑफ पैरेलल कहलाती है। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल इन नेचर। फिर अब बात करते हैं टोटल कितने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं ग्लोब के ऊपर। तो उसकी संख्या मैंने लिखी है 181, और देखिए बाइफरकेट किया मैंने 180 और प्लस 1 कहा, इसके बगल में मैंने EQ लिखा है जो इक्वेटर को डिनोट कर रही है। अब क्यों? देखिए 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर से मैंने कहा कि हर एक डिग्री पर हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे
इक्वेटर के नॉर्दर्न डायरेक्शन में 90 लाइंस लैटिट्यूड ड्रॉ किया हमने हर एक डिग्री पर, और इक्वेटर के साउथ में भी एक एक डिग्री पर 90 कुल संख्या में हमने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ किया। जैसे कि 90 डिग्री जो साउदर्न डायरेक्शन में होगा लाइंस ऑफ लैटिट्यूड वो कहलाएगी 90 डिग्री सदर्न डायरेक्शन के नॉर्थ लैटिट्यूड को साउथ पोल कहते हैं, और नॉर्दर्न डायरेक्शन के 90 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। तो ये 0 डिग्री के अलावा 1 से लेके 90 और 1 से लेके यहां भी 1 से लेके 90, तो ये 90 90 180 हो गए, और इक्वेटर को जब हम ऐड करते हैं टोटल 181 होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर इन नेचर है, सर्कुलर प्लस पैरेलल इन नेचर, इसीलिए मैंने कहा था कि इक्वेटर को ग्रेटर सर्किल कहते हैं। जैसे आपको बच्चों पता है कि अगर हम एक सर्किल के अंदर जो लंबी लाइन खींचते हैं जो उसके सेंटर से पास करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, या क्या कहते हैं बताइए। यानी ये तो लार्जेस्ट कॉर्ड हो गई, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम देखिए, ये हम रेडियस कहते हैं, और ये आपका 2r बराबर क्या होता है, d। ये d क्या है, d डायमीटर। उसी प्रकार से ये इक्वेटर जो है उसी डायमीटर के रूप में, सो लॉन्गेस्ट लाइन lines of latitude that can drawn on the globe is called equator। तो इतनी बात आप समझ में आए हुए, और ये ईस्ट टू वेस्ट ये रन करती है इस प्रकार से, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि टावर चौक आना, तो टावर चौक आना तो एक प्रकार से ही क्या हुआ कि इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में कितनी दूरी पर वो जगह है वो उसने बता दिया, लेकिन हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिला, टावर तो पहुंच गए, यानी हम एक जगह तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचे। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें दूसरा भी एक रेफरेंस चाहिए, और वो दूसरी रेफरेंस मिलेगी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के रूप में। ये ध्यान देंगे, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसकी अपनी जरूरतें हैं, इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, इवन कि ये इमेजिनरी लाइन है लेकिन ये बहुत उपयोगी है हमारे लिए। तो अब हम लोग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसे कहते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नाम से स्पष्ट है, लॉन्गिट्यूड लंबी रेखा, लंबी, ग्लोब के ऊपर वो रेखा जो अप्स डाउन ड्रॉ की जाती है, जो पोल से होकर के गुजरती है। द वर्टिकल लाइंस ज्वाइनिंग पोल्स ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ये भी इमेजिनरी लाइन है, जैसा मैंने लिखा है, इमेजिनरी लाइंस दैट रन around the earth vertically up and down and meet at the north and south poles, इसे कहते हैं हमें लॉन्गिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहते हैं, these are called मेरिडियंस। आपने नाम सुना है प्राइम मेरिडियन, बिल्कुल सुना होगा। तो ये लॉन्गिट्यूड को ही मेरिडियन कहते हैं। अब प्राइम का अर्थ क्या है वो हम तो डिस्कस करेंगे, उसके पहले एक चीज हम देख लें कि ये लाइन सेमी सर्कुलर इन नेचर होती है। संतरा किसने किसने खाया है, आप सबने खाया होगा। तो संतरे को आपने छिला होगा, छिलने के बाद आपने देखे होंगे जो उसके जो पीसेस होते हैं वो भी सेमी सर्कुलर इन नेचर होते हैं, इस प्रकार के पीसेस लगे हुए होते हैं उसमें, ये सेमी सर्कुलर इन नेचर होते हैं। उसी प्रकार से सेमी सर्कुलर मतलब आधा गोला। और दूसरी बात ध्यान देंगे, ये पैरेलल्स नहीं होती हैं, ध्यान देंगे, ये नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होती हैं। ये दो चीज ध्यान देंगे, ये सेमी सर्कुलर होती हैं और पैरेलल नहीं होती, यानी इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। ध्यान देंगे इनके बीच की दूरी मध्य में अधिक होती है, यहाँ पे दूरी अधिक होगी, और जैसे जैसे ये पोल की ओर जाएंगे ये दूरी घटने लगेगी, नैरोअर हो जाएगी, और सच पूछिए तो पोल्स पे ये बिल्कुल एक डॉट के रूप में, एक डॉट पे आके मिल जाती हैं। तो ये कहलाती हैं आपकी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो बच्चों यहां से आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की उपयोगिता क्या है, तो आप उसकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते किसी भी जगह को। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है लॉन्गिट्यूड का, वो है टाइम के कैलकुलेशन में भी। कैसे, जब हम पढ़ेंगे। और यहां पे ध्यान रखेंगे 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड जो
जीरो डिग्री जिसको मानते हैं हम लोग, ये जीरो डिग्री क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं आपको। ये सबसे सबसे छोटी लाइन जो दोनों पोल को जोड़ती है, शॉर्टेस्ट, ये बिल्कुल वर्टिकल होती है, वो आपकी प्राइम मेरिडियन कहलाती है। और ये मानते हैं कि जीरो डिग्री से ये रन करती है। और प्राइम मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्य वो मेरिडियन है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है, जिसकी रेफरेंस में, जिसके तुलनात्मक रूप से हम समय की गणना करते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जीरो डिग्री लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को हम ये मान के चलते हैं कि ये ग्रीनविच, जो कि लंदन में सिचुएटेड एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां से पास करती है। इसी से कॉन्सेप्ट निकला है ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज कॉल्ड जीएमटी। क्या निकल के आया है? तो जीएमटी, ये टाइम की कैलकुलेशन हम जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी जीरो डिग्री लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में करते हैं। और एक चीज अब यहां से आप ये भी समझ चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर है, if you have been inquired about the differences between lines of latitude and longitude, you are in a position to give such kind of explanation. Now coming back to the point about the grid system about which I have mentioned, ये grid system कैसे काम करेगी? अब थोड़ी सी चीजों को समझिए। अब हम समझते हैं कि सपोज कोई प्लेस है, प्लेस ए, और इसकी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो सपोज करते हैं कि 10 डिग्री, याद कीजिएगा डायरेक्शन बताना होगा, 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ। जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हम याद करेंगे कि इक्वेटर के रेफरेंस में हमने देखा कि ये नॉर्थ साउथ क्या दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। सपोज करते हैं 10 डिग्री नॉर्थ है और ये प्लेस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम ये मानते हैं कि ये जगह आपके लिए, ये सपोज करते हैं कि ये 10 डिग्री साउथ, अब यहां देखिएगा, सॉरी 10 डिग्री ईस्ट में है, तो ईस्ट, अब इस डायरेक्शन को देखिए, प्राइम मेरिडियन जो है वो धरती को यानी कि ग्लोब को दो और हेमिस्फीयर में बांटती है। इसे कहते हैं हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसे कहेंगे हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ध्यान देंगे, ये जो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये हमारी धरती को यानी कि ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की जाती है इस प्रकार से कि वो इस बात को निर्धारित करती है कि इसके इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक रे डायग्राम के विषय में बताया था, इस प्रकार से ये हमेशा याद रखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन, तो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात हम लोग कर रहे थे, ये डायरेक्शन याद करना है। उम्मीद करता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे, नॉर्थ साउथ, फिर से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी सहायता हो सके, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये ईस्टर्न पार्ट में हुआ लॉन्गिट्यूड की, इसलिए कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम बात कर रहे थे कैसे डायरेक्शन को लोकेट करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर सपोज कीजिए एक प्लेस है जो ग्लोब पे है, जो लोकेट करने जा रहे हैं ग्लोब पे, वो 10 डिग्री नॉर्थ है। ये नॉर्थ दिखाने का मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड, और ये ईस्ट का मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो अब सपोज कीजिए अगर हम इस पे ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री हमने मान लिया, और ये सपोज करते हैं कि ये 10 डिग्री है। तो अब क्या हुआ कि 10 डिग्री ये लैटिट्यूड है, तो 10 डिग्री के ऊपर इस प्रकार से लाइन गई, और यहां हमने कहा 10 डिग्री ईस्ट। तो यहां सपोज कीजिए कि ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री ये और 10 डिग्री ये, यानी 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर के साथ, ये लॉन्गिट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, ये और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये हो गई प्लेस ए का कोऑर्डिनेट, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे इंडिया को हम कैसे ग्लोब पे हम लोकेट कर पाते हैं। तो इंडिया का हमें लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता होना चाहिए, और इसी प्रकार से हम अगर किसी भी जगह के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को जानते हैं, if we are knowing about latitudinal and longitudinal extent of any place, we can easily locate that place on the globe, on the world map. So that is the simplest way, and this is the utility of latitude and longitude.
Even though these are imaginary lines, I am repeating again and again, stressing again and again on this point that these are not real lines, imaginary lines, but these are very, very important. These are the fundamentals to understand the concept related to geographical terms. So next we are going to move to just see the location of India with the reference of latitude and longitude. तो आइए अब हम लोग इंडिया के लोकेशन को ग्लोब पे डिटरमाइन करते हैं, ढूंढते हैं, हाउ वी कैन लोकेट इंडिया ऑन द ग्लोब. If you remember, I have just given you 2 points of reference regarding locating a place on the globe, on the world map, that is latitude and longitude. So first of all, you have to remember the latitudinal extent of India. The latitudinal extent of India is 8 degree 4 minute north to 37 degrees 6 minute north. Again I am repeating, 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. North means we are talking about the place is situated to the north of equator. So this we were discussing latitudinal extent 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north. North means northern hemisphere. We are talking about northern direction towards the equator. And then after longitudinal extent 68 degree 7 minute east. That means east for eastern direction. ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, ये हुई ईस्टर्न, जो मैंने कहा था ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी ईस्ट. अब इन दोनों पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम अब ग्लोब पे लोकेट करने की कोशिश करते. देखिए मैंने क्या किया कि 0 डिग्री एक लैटिट्यूड को हमने ड्रॉ किया, यानी कि ये इक्वेटर, ये मैंने इक्वेटर को ड्रॉ किया. और जब इंडिया की लोकेशन को देखा है 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच, तो हमने सपोज किया कि ये लैटिट्यूड है 8 डिग्री का, जो मैंने डॉटेड लाइन से मिलाने की कोशिश की है. और 37 डिग्री 6 मिनट तक एक्सटेंड है, 37 को मैंने लिया तो इसको डॉटेड लाइन से मैंने मिलाया. और यहाँ देखिए मैंने प्राइम मेरिडियन लिया है लॉन्गिट्यूड के रूप में, और इसकी एक्सटेंड 68 डिग्री 7 मिनट. तो ये मैंने 68 डिग्री 7 मिनट लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को दिखाया है, और 97 25 मिनट मैंने इसे इस लॉन्गिट्यूड को यहाँ दिखाया. अब देखिए जो मैंने डिस्कस की थी कि जहां पे ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करेगी वही उस जगह का एग्जैक्ट प्लेस होगा. तो आप देखें 37 डिग्री यहाँ, और ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 25 मिनट, ये कहां पे आपस में ये इंटरसेक्ट की. गौर कीजिए 67 डिग्री 7 मिनट का ये लाइन्स है लॉन्गिट्यूड, और 97 का ये है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, और 8 डिग्री का ये है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, और 37 डिग्री का ये है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. अर्थात जब हम इंडिया के लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमारा ग्लोब पे इंडिया यही प्लेस होगा. बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चीज को हम समझ रहे थे उस समय से कि कैसे हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का इस्तेमाल करके किसी जगह के लोकेशन को हम डिटरमाइन करते हैं.